اور یہ ایک الگ کھچنی پچ رہی ہے ملک کے اندر. والدہ جو اس کی تھی بے نظیر بھٹو، وہ جو سیاست چاہتی تھی جو سیاست کرتی تھی نا، وہ بلاول نہیں کر رہا ہے. بلاول کر رہا ہے اپنے والد محترم آصف زرداری کی سیاست. آئین کی یہ تقاضا ہوتی ہے کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے. موسم نقوی آسمان سے نہیں اترا ہے. جیت پی ٹی آئی گئی، اقتدار نون لیگ کو ملا. ان کی جو یہ اردو ہے سندھی لہجے میں آپ کو کیسے لگتی ہے، اس پر بھی اپنا کمنٹس ضرور دیں. السلام علیکم، میں ہوں رانا شیر محمد فیس آف سندھ کے ساتھ. دوستو آج ہم بات کریں گے کہ حکمران اتحاد جو آئینی ترمیم پیش کر رہی تھی وہ اس میں ناکام ہو گئی ہے، اور اس ناکامی کے بعد اب بیچ والا راستہ نکالنے کے لیے یہ ٹاسک مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کو دیا گیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں جب بھی جو بھی چاہتی ہے وہ کرتی رہی ہے، مگر اس بار جو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور حکمران اتحاد ہے اور دوسری طرف عدلیہ اور اپوزیشن جماعتیں ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں نوشر و فروز پریس کلب کے سابق صدر مظہر خاص کے لیے، ان سے رائے لیں گے اس بارے میں کہ اس موجودہ صورتحال کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. مظہر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو آئینی ترمیم حکمران اتحاد مکمل طور پر لانے میں ناکام ہو گیا تھا اور اب ملاقاتوں کے جو سلسلے شروع ہو گئے تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور اندرونی طور پر ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی اب جو کوشش ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کی مہربانی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد سابق جو صدر تھا عارف علوی، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے اور ان کی تفصیلی مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ میں کسی بھی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنوں گا اور میں اس کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں. میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور رہوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں حمایت کرتا تو یہ عوام کے ساتھ خیانت ہوتی. یہ عوام کے ساتھ خیانت ہے، اور سیاست کے جو ہے نا اس کے سیاسی اثر جو ہے نا وہ خراب کرتے تھے. اس لیے اس سوچ کے وجہ سے مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ بات کرائی گئی ہے، اور مولانا نے خود نہیں کہا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کے پیچھے کون ہے اور کیا چل رہا ہے یہ آگے کچھ دنوں میں سارے ملک کی عوام کو پتہ لگ جائے گا. اور یہ ایک الگ کھچنی پچ رہی ہے ملک کے اندر. ایسا لگ رہا ہے کہ جو آرمی چیف سمیت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں اور منظر پہ کچھ اور دکھاتے ہیں. مطلب پردے کے پیچھے جو بات ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو کچھ چاہتی ہے وہ کچھ اور ہے اور دکھاتی کچھ اور ہے. ایک جو ابھی درمیان والا راستہ ہمارا جو ملک ہے اس میں اکثر یہی رہا ہے، ماضی کا حصہ ہے یہ. مانا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا دادلا کہا جاتا تھا، آنکھوں کا تارا تھا جہاں اسے اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لے آئی. اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا حساب اسٹیبلشمنٹ تھی. اب جو یہ موجودہ حکمران جماعتیں جو پاکستان کی اپنے آپ کو بڑی جماعت کہتی ہے، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، جب پاکستان کی دو بڑی جماعتیں اکٹھے ہو گئی ہیں پھر ان کے آگے کون سے مسئلے ہیں، ان کے آگے کون سی رکاوٹیں ہیں؟ نہیں، دونوں مل کر بھی تو 2/3 اکثریت نہیں رکھ رہی نا. کیوں نہیں رکھ رہی؟ جب دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم جو ہے ملک کی بڑی پارٹیاں ہیں، کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو
पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ दिन पहले उसने कहा कि इस मुल्क में पार्लियामेंट बेबस है। माना एक अजीब सा मंजर कशी है या अजीब सी कहानी है, जिस पार्टी का चेयरमैन पार्लियामेंट में बैठा है और वो आईनी तरमीम ले आना चाहता है, वो खुद कह रहा है कि पार्लियामेंट बेबस है। नहीं, वो तो ये भी कह रहा है कि 18 साल पहले मेरी वालदा ने ख्वाब देखा था आईनी तरमीम का। वालदा की सियासत ही नहीं करा, उसे छोड़े। बाकी बात है आगे की, बिलावल कहेगा तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो अपनी माँ या वालदा जो उसकी थी बेनजीर भुट्टो, वो जो सियासत चाहती थी या जो सियासत करती थी ना, वो बिलावल नहीं कर रहा है। बिलावल कर रहा है अपने वालिद मोहतरमा आसिफ जरदारी की सियासत। कम से कम ये बात सोचने की है, और जो लोग सियासत पे थोड़ा घना तवज्जो दे रहे हैं या समझ रहे हैं सियासत को, उनके आगे ये अभी तो ये खुलकर सामने आ गई ये बात। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, वो अपनी वालदा की सियासत नहीं कर रहा, अब वो अपने वालिद की सियासत कर रहा है। कौन सी सियासत अच्छी है कौन सी बुरी है ये अलग बात है। अच्छा, एक बाकी चीज आगे ये आईनी तरमीम वाली बात असल में ये है कि अब जो है बिलावल भुट्टो ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक और बात की है, तो हम आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं। वह ये एक मजाक है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की चल रही है, जहाँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट चल रही है, मुल्क और सूबों में हाई कोर्टें चल रही, क्या वो आईनी नहीं? उनका मतलब ये है कि जब मुल्क में अगर कोई भी आईनी बहरान होता है या सियासी जो बातें होती है, तो जो अदालतें होती है वो सियासी केसेस के सिलसिले में वो आम आदमी को वो तवज्जो नहीं दे सकते, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में केसेस के अंबार जो है ना वो कोर्टों में लग गए। तो आईनी अदालत बनाने का मकसद ये दुनिया भर के 85 से ज्यादा ममालिक हैं जिनमें ये आईनी अदालतें हैं, कि जो आईनी तशरीह होती है, जिस तरह से हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है या पीपल्स पार्टी भी कहती रही है कि पीटीआई ने ना दरख्वास्त दी है ना पीटीआई के वहां पर उसमें सीटें मांगी गई लेकिन फैसला दिया गया, और 63A का जो कानून था उसका भी जो उसकी तशरीह की गई है 2 साल पहले, कि जब हमजा शरीफ की हुकूमत थी तो उसकी तशरीह ये होती थी आइन में कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का वोट होता था वो कास्ट होने के बाद काउंट किया जाता था, लेकिन इस 63A की उन्होंने ऐसी तशरीह की कि वो काउंट भी नहीं होगा और वो नाअहल भी हो जाएगा। मेरी बात सुनो, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, जो काम उनको करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है। नहीं, वो तो तनकीद कर रहे हैं। टमाटर का भाव भी सुप्रीम कोर्ट और डेयर भी सुप्रीम कोर्ट बनाए, पहले तो आप टमाटर का भाव भी सुप्रीम कोर्ट। जो पूछ रहे हैं वो पहले सुने, उसके बाद बात ये है, पार्लियामेंट या कौमी असेंबली सूबाई असेंबली, उनका काम क्या है? ये काम है क्या करप्शन करे और उसका दिफा करे? उनका काम ये है कि ऐसा आइन बनाए जो आम आदमी के भलाई का आइन हो, आम आदमी को फायदा मिले। ये आइन नहीं बनाए तो हम आगे जाकर करप्शन कैसे करें, जो करप्ट ऑफिसर हैं उन्हें कैसे कुर्सी पे बिठाएं। ऐसा आइन बनेगा तो जब बनेगा जो भी हुकूमत हो, वो पीटीआई की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, उन आइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही जो है एक्शन लेती है, वही फैसला करती है। उनको मुल्क बचाना है, उनको ये नहीं बचाना कि पीपल्स पार्टी बचे या मुस्लिम लीग नून बचे। नहीं, अब जैसे वो पहले बात तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट का ये मकसद नहीं कि मुल्क में कौन सी जमात को हुकूमत मिलती है या कौन सी जमात की आगे हुकूमत आती है। सुप्रीम कोर्ट का ये मकसद है कि मुल्क में जो हो रहा है वो क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है। ये आइन की ये तकाजा होती है तो इंसान के जो बुनियादी हुकूक होते हैं सबसे पहले उस पे बात होनी चाहिए कि इस मुल्क में जो रह रहे हैं उनको जो हुकूक मिल रहे हैं या उनको जो हुकूक हैं क्या उन पे अमल हो रहा है।
पटाटे की बात या टमाटे की बात ये एक पार्टी का चेयरमैन कर रहा है, ये हंसने की बात है। तो कि ये मेरी ये बात हुआ है ना माजी में कि माजी डैम, में अच्छा डैम मेरी बनाना, बात डैम बनाना क्या सुप्रीम कोर्ट का पहले काम मेरी है? बात सुने नहीं तो नहीं, सही। इसका जवाब दे पहले मैं आप दे रहा हूँ, कि आप डैम सुने, की अगर वो मेरी बात सुने तो सही। रहमत बाबा ने जो डैम बनाने की वो बात की, रहमत डैम के लिए 20 रहमत अरब बाबा रुपए, ने जो कहा उस गलत डैम के बात जो थी ना वो गलत थी, लेकिन जो जैज कंपनी है वो जो टैक्स ले रही है, आप 100 का बैलेंस कराएं, आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं? मेरे ख्याल 30 रुपए करते हैं। क्यों कट रहे हैं? वो कहाँ जा रहे हैं? कौन उनको खर्च करा है? इस पर किसके जेब इस पर में अगर जा? बात या करेंगे तो मेरी जब बात बिजली पहले का बिल है उसके पहले इतने मेरी इतने बात टैक्स है, पहले गैस के बिल पर इतने टैक्सेस लगा मेरी दिए गए, पहले बात वो सुने। ये हमारा मैं- टॉपिक ये नहीं है मैं- जिस पर आप जा रहे हैं। यार पहले बात तो सुने। मैं जो अगला चीफ जस्टिस था उसके कुछ खराब अमल या कुछ कुछ अच्छे खराब अमल, रहा। मैं तो आपको फैसले बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब कौमी असेंबली और सेनेट से पास हो गया और उस पर अमल दरामद होने के लिए वो जब असेंबली में पेश किया गया तो उमर अत्ता बंदियाल ने पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को उड़ा दिया कि आइन साज इदारे को रोका गया कि आप आइन पर में तरमीम नहीं कर सकते। जो आइन बनाने वाला इदारा है पार्लियामेंट, उसको उसके काम से रोक दिया गया। अच्छा, दूसरी बात, वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके ऊपर इस वक्त अमल दरामद हो रहा है। अब अगर सुने ना, मेरी बात सुन ले पहले, फिर उसका जवाब दे। अब जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है उसको एक्सटेंशन देना चाहती है हुक्मरान जमायत, मगर उसको अपोजिशन चाहती है एक्सटेंशन ना मिले। लेकिन अब जराए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने बीच का रास्ता निकाल लिया है कि वो पाकिस्तान के जीरक सियासतदान है, और जिस तरह आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान अरशद नदीम बने हुए हैं, जिसने अभी आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है कि हर पार्टी उसको अपना चाहती है कि वो हमारा है, और हर आदमी चाहता है उसको राम करना, उसको इनामात देना। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की पोजीशन वो है। मगर गुज़िश्ता रोज जो स्पीकर कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के स्पीकर ने जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका फैसला किया जाए, तो वो चाह रहे हैं कि जो नया कानून बना है उस पर अमल करके वो सीटें हमें दी जाए। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मुख्तसर बताएं। मुख्तसर यही बात मैं कहने वाला था जो आप कर रहे हैं। ये जो सियासी जमातें हैं ना, इन्होंने मुल्क को मजाक बना दिया है और आइन को मजाक बना दिया। अदालतों ने नहीं बनाया। पहले बात सुने, अदालत ने ये फैसला ही नहीं दिया था कि पीटीआई से आप निशान छीने। चलो वो हो गया। वो कैसे हो गया? एक इंतहाई दर्जे की एक इंतहाई गलत काम हुआ, वो हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट है जिस काजी फायज ईसा मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उसने बनाई हुई है, उसने फुल कोर्ट बनाई और फैसला फुल कोर्ट ने दिया है। एक जज का नहीं है, या 3 जज का नहीं है, 4 जजों का नहीं है। ये लेकिन पहले बात तो सुने ना, ये मुस्लिम लीग नून वाले पहले कहते थे फुल कोर्ट जो फैसला करेगी हम कबूल करेंगे। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे फुल कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम कबूल करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला दिया मखसूस सीटें आप उनको दें, तो इन्होंने क्या किया? उनको सीटें नहीं दी, फिर एक ऑर्डिनेंस ले आए। ये मजाक नहीं, किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं होता है। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल तो करे ना, उस पे अमल नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि जो है इलेक्शन कमीशन वो तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई। तो हमें बताएं कि असल ये फैसला हमें समझ में नहीं आ रहा। उस फैसले में लिखा गया था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने क्या फैसला दिया है? नहीं, वो तो फैसला नहीं है, वो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप इस पर अमल करें, इस पे अमल करें। लेकिन तफसीली फैसला तो नहीं आया। तफसीली था ना उसमें। नहीं, अभी तक तफसीली फैसला थोड़ी बात तो सुने ना, उसमें उन्होंने जो लिखा है ना ऑर्डर में, वो उनको कहें कि पढ़ के तो देखे ना उसमें क्या लिखा है।
उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि हमने आपको ये हुक्म दिया है और फैसला किया है कि आप पहले अच्छा, उनको इस मुल्क को आप बनाना रिपब्लिक बना ये देंगे? बना रहे हैं। पहले बात सुने तो सही, ये मतलब सियासतदान बना रहे हैं। क्या पता ही नहीं है कि मुल्क को क्या करना चाहिए। करप्ट टोला लेकर आए, मुल्क में बिठा कर सारे मुल्क को इन्होंने अखाड़ा बना दिया। भाई ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान पे रहम करे। रहम यही है कि आप जैसे एक तो इदारा बना रहे नहीं रहे और इदारों से टकराव कर रहे। भाई जब चाहते हैं कि इदारों में सुधारे आए, ऐसे सुधारे आएंगे क्या? आप जिस सुप्रीम कोर्ट को कह रहे, हाँ आपने कहा कि कौमी असेंबली का स्पीकर खत लिखता है, या पंजाब असेंबली का स्पीकर खत लिखता है, ये मजाक नहीं। दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और स्पीकर खत लिखे। ये अपने मुल्क की मजाक कर उड़ा रहे हैं। अपने मुल्क के साथ क्या, पहले तो आप उस पे अमल तो करें। इनको ये हमारा जो इक़्तिदार है वो छीना न जाए, या इनको आगे जो है यही सूरत हाल नजर आ रही है जैसे इन्होंने इमरान खान के साथ किया है, इनके साथ वही होने वाला। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।